بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو مدرسہ.pk میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد، جو کہ شہادت العالمیہ وفاق المدارس السلفیہ کا نصاب جو سال اول اور سال دوم کا ہے، اس کی ایک کتاب ہے۔ اس کا سبق نمبر 2 آج ہم زیر بحث لے کر آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہوگا صاحب کتاب، یعنی جو بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کے مؤلف ہیں، مصنف ہیں، ان کا جو تعارف ہے ان کے متعلق ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کے متعلق کون سی چیزیں جاننے کی، سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سب سے پہلے بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا تعارف سمجھنے کی کوشش کی اور ہم نے اس کے تحت جانا کہ یہ کتاب فقہ کی ایک اہم ترین کتاب ہے اور فقہ المقارن کی جو ہے یہ ایک بہترین کتاب ہے۔ اس میں مصنف رحمہ اللہ نے ریزی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ ایک منفرد اسلوب اور جداگانہ اسلوب اپناتے ہوئے امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ایک نہایت ہی بلیغ کوشش سر انجام دی ہے۔ اس کے بعد ہم نے کتاب کے تعارف کے بعد بدایت المجتہد کا اسلوب کیا ہے، یعنی یہ کس نہج اور کس اسلوب پہ لکھی گئی ہے، اس کے تحت ہم نے مصنف رحمہ اللہ کا جو اسلوب ہے، یعنی سب سے پہلے اختلافوں کو ذکر کرنا، پھر سبب اختلاف کو ذکر کرنا، بعض مقامات پر راجح موقف کو ذکر کرنا، اس چیز کو ہم نے چند ایک مثالوں کے ساتھ جاننے کی اور سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی۔ تیسرے نمبر پر گزشتہ سبق میں ہم نے بدایت المجتہد کی جو اصطلاحات ہیں وہ جاننے کی کوشش کی۔ اصطلاحات کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ قاری جو پڑھنے والا ہے، سیکھنے والا ہے، وہ اس کتاب کا صحیح معنوں میں قاری بن جائے، جو قاری کا حق ہوتا ہے، یعنی اچھی انداز سے اس کتاب کو سمجھ لے، تو اس کے لیے اصطلاحات کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو گزشتہ سبق میں جو اس کتاب کی اصطلاحات ہیں ہم نے وہ بھی جاننے کی کوشش کی، اور پھر سب سے آخر پہ گزشتہ سبق میں ہم نے بدایت المجتہد کی جو شروحات ہیں وہ جاننے کی کوشش کی کہ اس کی عربی اور اردو تراجم اور شروحات جو اب تک کی جا چکی ہیں، لکھی جا چکی ہیں، منظر عام پہ آ چکی ہیں، ان کے متعلق آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ عزیز طلباء کرام، آج کے سبق میں جو چیز ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہوگا بدایت المجتہد و نہایت المقتصد۔ اس کتاب کے جو مؤلف ہیں ان کا تعارف کیا ہے، یعنی جو امام ابن رشد رحمہ اللہ ہے ان کا ذاتی تعارف کیا ہے۔ اس سبق میں ہم صاحب کتاب کا تعارف جانیں گے، اس کے بعد پھر تاریخ پیدائش اور وفات کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تیسرے نمبر پر حالات زندگی، یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا کارنامے انجام دیے اور کس انداز سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اس کے متعلق چند ایک چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم اساتذہ اور جو تلامذہ ہیں ان کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ انسان کی زندگی میں نہایت اہم کردار ہوتا ہے اساتذہ کا، تلامذہ کا، کہ وہ کن کن اساتذہ سے پڑھا ہوا ہے، تو اس سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے، ان کے جو اساتذہ ہیں ان کے متعلق رہنمائی لینے کی کوشش کریں گے، اور پھر آخر پہ علمی پس منظر ان کا، یعنی فقہ کے علاوہ یہ فقہ جو ہے، فقہ کا ایک میدان بڑا وسیع ہے، ہم فقہ کی کتاب ان کی پڑھ رہے ہیں، لیکن فقہ کے علاوہ ان کی مزید خدمات کس کس میدان میں ہے اور انہوں نے علمی اعتبار سے کون کون سی خدمات انجام دی ہے اور امت کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے متعلق ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم صاحب کتاب کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ صاحب کتاب کا مکمل نام جو ہے وہ امام صاحب کا نام ابو الولید، یہ ان کی کنیت ہے، اور محمد ان کا اصل نام ہے۔ محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن احمد بن رشد القرطبی، یہ ان کا مکمل نام ہے۔ ابو الولید جو ہے ان کی کنیت ہے اور محمد ان کا اصل نام ہے، لیکن عموماً جو کتاب کے ٹائٹل پہ نام لکھا جاتا ہے، یہ جو ہماری زبان میں عموماً مشہور ہے، وہ ابن رشد ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں
कि इब्ने रुश्द जो है ये इमाम साहब की काफ़ी दूर जो आबाओ अजदाद हैं उनमें जाके नाम है, तो इसी नाम के साथ वो मशहूर हैं। रही बात इस कुनियत की, तो अबुल वलीद जो है ये इनकी ख़ानदानी कुनियत है और इसके आबाओ अजदाद से मुंतकिल होती आ रही थी, तो इसी एतबार से ये इनको अबुल वलीद इन्होंने अपनी कुनियत इख्तियार कर ली। और ये जो अल कुर्तबी है, इब्ने रुश्द रहमहुल्लाह जो है ये कर्तबा में पैदा हुए, अंदलुस की पैदाइश है इनकी, तो इस एतबार से इनको अल कुर्तबी भी कहा जाने लगा। अजीज सलावा किराम, ये तो इनका मुकम्मल नाम हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि इनका पस मंज़र क्या है और इन्होंने किस अंदाज से शोहरत पाई। सबसे पहले इनकी जो शोहरत है, ये एक फ़कीह है, आलिम है, तबीब है और फ़लसफ़ी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको बड़ा वाफर हाफ़िज़ा अता किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको गोना गो सलाहियतों से नवाजा था। फ़िक़्ह का इल्म भी इन्होंने हासिल किया, दीन इस्लाम के दीगर उलूम में भी महारत हासिल की, तबीब भी हुए और अपने वक़्त के मशहूर और माया नाज फ़लसफ़ी हुए। और इन्होंने अरस्तु के हवाले से कई एक किताबों की शुरुआत भी लिखी और फ़लसफ़े पे कई अहम काम भी किए। आगे हम इनकी जब इल्मी पस मंज़र में देखेंगे तो हम मज़ीद वहाँ पे गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आबाओ अजदाद जो है इनके मालिकी मसलक के आइम्मा थे, तो इस एतबार से इमाम साहब भी मालिकी मसलक के ही पैरोकार बने और इन्होंने मालिकी मसलक के साथ ही लगाव को इख्तियार किया। उसके बाद इनके जो वालिद साहब थे और इनके जो दादाजी थे, ये खुद भी यानी खुद भी, वालिद साहब भी और दादाजी भी, ये जो तीन नस्लें थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको इज्जतों से नवाजा और ये करतबा के काजी मुकर्रर हुए। और इनके जो दादा थे यानी मोहम्मद, वो आलिम और फ़कीह थे, उनका ताल्लुक भी अंदलुस के आला ख़ानदान से था, तो इस एतबार से ये आला ख़ानदान और नस्ब की वजह से ये खुद भी काजी मुकर्रर हुए। उसके बाद हम देखते हैं इनकी तारीख़ पैदाइश और वफ़ात के हवाले से। इमाम साहब की जो तारीख़ पैदाइश है वो करतबा यानी अंदलुस में हुई। इमाम साहब के आबाओ अजदाद अंदलुस के एक आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, तो जाए पैदाइश जो है वो इमाम साहब की अंदलुस यानी करतबा है। अब जो तारीख़ पैदाइश है इसमें दो कौल मौजूद हैं। एक कौल के मुताबिक इमाम साहब की पैदाइश 514 हिजरी को हुई, जबकि जो दूसरा कौल है उसके कौल के मुताबिक इमाम साहब की पैदाइश 520 हिजरी ब मुताबिक 1126 ईस्वी इमाम साहब की पैदाइश हुई। और ये जो दूसरा कौल है इसी कौल को ज़्यादातर राजे कहा गया है और इसी कौल के मुताबिक जो अरबी कुतुब है या दीगर मुअर्रिखीन जो है जो इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं वो इसी कौल को राजे कौल कहते हैं। इमाम साहब की वफ़ात जो है ये मराकश में हुई। ये भी एक लंबा चौड़ा वाक़या है। इसमें इमाम साहब ने कई एक तंगियाँ और सख्तियाँ बर्दाश्त की अपनी वफ़ात से कबल। बहरकैफ इमाम साहब की जो वफ़ात है उसके हवाले से जो वाजे और राजे कौल मौजूद है वो यही है कि इमाम साहब की वफ़ात 595 हिजरी बामुताबिक 1198 ईस्वी इमाम साहब इस दुनिया से रहलत फरमा गए। और इस तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात के मुताबिक इमाम साहब की जो उम्र है वो शमसी महीनों के लिहाज से 72 साल की उम्र पाई और कमरी महीनों के लिहाज से इमाम साहब ने 75 साल की उम्र पाई। यानी जो हिलाली महीने कमरी महीने होते हैं ना चांद के एतबार से, उस एतबार से इमाम साहब की उम्र 75 साल हुई। इमाम साहब ने इन 75 सालों में अपनी इस उम्र के अरसे में आलम इस्लाम के लिए बहुत ही कारनामे अंजाम दिए इल्मी एतबार से। और इमाम साहब के बारे में ये भी कहा जाता है कि इमाम साहब ने कभी अपनी ज़िंदगी में अपना वक़्त ज़ाया नहीं किया सवाए 2 रातों में। एक रात जब उनकी शादी हुई और दूसरी रात जब उनके वालिद मोहतरम की वफ़ात हुई। ये 2 रातें ऐसी थी जिनको वो कोई काम ना कर सके जिसमें, बाकी उन्होंने सारी ज़िंदगी कोई ना कोई काम किया है, इल्म की खिदमत की है और इल्मी तगदो में मसरूफ़ रहे हैं। आगे हम देखते हैं जी इमाम साहब के हालात ज़िंदगी क्या है। मुख्तसर हालात ज़िंदगी जो हैं वो ये है कि इब्तदाई तालीम इमाम साहब ने घर पे ही हासिल की, क्योंकि इमाम साहब के जो वालिद मोहतरम थे मोहम्मद बिन अहमद
جو احمد تھے इमाम साहब के वालिद मुहतरम, वो फ़िक़्ह मालिकी के साथ रुझान रखते थे और फ़िक़्ह मालिकी के आलिम थे। उनकी कुनियत अबुल कासिम अहमद बिन मोहम्मद है। इमाम साहब ने अपने वालिद मुहतरम से ही मुवत्ता इमाम मालिक की तालीम हासिल की, जो फ़िक़्ह मालिकी की जिसको बुनियाद कहा जाता है, और फ़िक़्ह मालिकी की जो हदीस की किताब है इमाम मालिक रहमहुल्लाह की जो जमा शुदा अहादीस हैं, इमाम साहब ने वो हिफ़्ज़ की और उनकी तालीम हासिल की अपने वालिद मुहतरम से। तो इब्तदाई तालीम और तरबियत जो है वो इमाम साहब के घर से हुई। उसके बाद इमाम साहब जो है 18 साल की उम्र में इमाम साहब ने मराकश की जानब सफ़र किया और उस वक़्त का जो खलीफा था, खलीफा अब्दुल मोमिन, उसके दरबार का कसद किया। उसके बाद इमाम साहब को जब दरबार में एक मुकाम हासिल हुआ और ये खलीफा के करीबी भी रहे, जब खलीफा का इंतकाल हुआ तो खलीफा का बेटा यूसुफ जो है वो जानशीन बना और वो खलीफा वक़्त बन गया। उसके बाद इमाम साहब ने उसके दरबार में भी कई खिदमात अंजाम दी, लेकिन बिला आखिर इमाम साहब के जो खलीफा वक़्त था आखिरी ज़िंदगी में उसके साथ कुछ अनबन हुई और इमाम साहब को सख्तियों का सामना भी रहा। बहर कैफ ये बात की बात है, लेकिन इमाम साहब ने अपनी जवानी की उम्र में और उसके बाद भी फ़िक़्ह का इल्म हासिल किया। उसके बाद इमाम साहब का रुझान इल्म तिब की तरफ हुआ। इन्होंने तिब की तालीम हासिल की, फिर फ़लसफ़ा का इल्म हासिल किया। उसके बाद अरबी अदब के साथ इमाम साहब का गहरा शगफ था। इसी सबब इमाम साहब के बारे में बयान किया जाता है कि उन्होंने दीवाने अभी तमाम जो है वो ज़ुबानी हिफ़्ज़ किया हुआ था। हर कैफ ये इमाम साहब की एक इल्मी जुस्तजू थी, इल्मी लगन और इल्मी शौक था। इमाम साहब खलीफा वक़्त के दरबार में रहे और उसके करीब भी रहे। खलीफा वक़्त ने इमाम साहब को इनके वालिद की वफ़ात के बाद काज़िल क़ुज़ात का ओहदा जो है वो भी अता किया, लेकिन खलीफा वक़्त के वफ़ात के बाद जो उसका बेटा था, बाज़ ने कहा कि यूसुफ के साथ अनबन हुई, लेकिन बाज़ ने याकूब की तरफ इशारा किया, यानी इब्ने यूसुफ जो है उसने इमाम साहब पे कुफर का फतवा लगा दिया और कुतुब को जलाने का हुक्म दे दिया। इसी हालत में इमाम साहब की वफ़ात भी हुई। तो आखिरी ज़िंदगी जो है ये इमाम साहब की ज़रा मुश्किल हालात में गुजरी। बहर कैफ अपनी जवानी की उम्र में और आखिरी उम्र से कबल इमाम साहब हुकूमत में भी रहे, ओहदे पे भी रहे और खलीफा वक़्त के मुक़र्रबीन में भी शामिल रहे। आगे हम देखते हैं जी इमाम साहब के उसातिज़ा और तलामिज़ा। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में जो है उसातिज़ा का बड़ा अहम किरदार होता है। जो उस्ताद होता है वही इंसान को तराशता है, वही खराशता है और वही इंसान को सीधे रास्ते की तरफ और उसकी मंजिल की तरफ इंसान को चलाता है। तो इस एतबार से इमाम साहब के उस्तातिज़ा जो है ये बड़े अहम है। फ़िक़्ह का इल्म इमाम साहब ने अपने वालिद मुहतरम से हासिल किया और उसके बाद जो दीगर उस्तातिज़ा हैं उनमें अल हाफ़िज़ अबी मोहम्मद बिन रज़्क़ रहमहुल्लाह और अबुल कासिम बिन बशकवाल रहमहुल्लाह, अबू बकर बिन समहून रहमहुल्लाह और अबू अब्दुल्लाह अल माज़री रहमहुल्लाह और दीगर कई एक अहम नाम शामिल है। इसके अलावा इमाम साहब ने तिब का इल्म जो है ये अबी मरवान बिन जज़यूल अल बलनसीर जो है उनसे हासिल किया और इमाम साहब का इनके साथ एक गहरा मोहब्बत और मवद्दत का ताल्लुक भी था। तो इस एतबार से इमाम साहब ने तिब में भी एक अहम मुकाम और अहमियत हासिल की। इसी तरह आगे हम इमाम साहब के तलामिज़ा देखते हैं। तलामिज़ा में से कई एक नाम है, लेकिन हम मशहूर जो 2-3 हैं सिर्फ वही देखेंगे। मशहूर नामों में पहले नंबर पर अबू बकर बिन जहूर रहमहुल्लाह का नाम है। उसके बाद अबू मोहम्मद हौतुल्लाह रहमहुल्लाह और सहल बिन मालिक जो हैं इनके नाम काबिल ज़िक्र हैं और मशहूर हैं इमाम साहब के तलामिज़ा में। आगे हम इमाम साहब का इल्मी पस मंज़र जो है उसको देख लेते हैं। इमाम साहब की जो तसानीफ है वो तकरीबन 108 के करीब है, जिनमें से 58 ही दस्तयाब हुई हैं और इनका जिक्र इब्ने अबी अस्बिया जो है उन्होंने जिक्र किया है तशरीह के साथ। उनमें से जो अहम हैं हम उनको देख लेते हैं। पहली किताब जो है वो किताबुत तहसील है। इसमें इमाम साहब ने जो उलमा के इख्तिलाफ है और ये फ़िक़्ह के हवाले से ही किताब है और इसमें इमाम साहब ने जो उलमा के इख्तिलाफ हैं उनको नकल किया किताबुत तहसील में। उसके बाद फिर अल मुक़द्दमात फ़िल फ़िक़्ह जो इस किताब को नकल किया और इसके बाद बिदायतुल मुज्तहिद व निहायतुल मुक़्तसिद जिस किताब को हम पढ़ने के जा रहे हैं और
इसी को आगे पढ़ेंगे। इस किताब को जिक्र किया, इसके उसलूब के मुतालिक भी आप जान चुके हैं। यहाँ पे भी उन्होंने वजाहत किया कि अल्ल फीही व वज्जह, इसमें सबब इख्तिलाफ और इख्तिलाफ ये दोनों चीजें जिक्र की है। और साथ ही साहिब किताब जो इनका तर्जमा लिख रहे हैं वो लिखते हैं वला नअलमु फी फन्निही अनफअ मिन, कि इस फन में इससे बेहतरीन किताब हमारे इल्म में नहीं है। उसके बाद इमाम साहब की अल कुल्लियात फी तिब है जो तिब के हवाले से है। फिर मुख्तसरुल मुस्तस्फा फिल उसूल ये किताब है। शरह उर्जूज़त इब्न सैना फी तिब, ये भी तिब के हवाले से किताब है। किताबुल हैवान है। जवामिउ कुतुब अरस्तु तालीस फित तबीआत वल इलाहियात, यानी जो अरस्तु की किताब है तबीआत और इलाहियात के बारे में, इमाम साहब ने अरस्तु की कई एक कुतुब की शुरुआत लिखी हैं और उनको उलमा ने जो मुख्तसरन सुगरा, वुस्ता और कुबरा के एतबार से तकसीम भी किया है। किताबुल मंतक है। तलखीसुल इलाहियात है। इसी तरह किताब तलखीसु माबाद तबीआ ली उरुस्तु तालीस, ये किताब इमाम साहब ने लिखी। किताब शरह किताबुस समा वल आलम ली उरुस्तु तालीस। इसी तरह किताबुन नफ्स ली अरस्तु ये लिखी। फिर तलखीस की इमाम साहब ने एक किताबुल उस्तुक़सात ली जान लियूस की जो किताब है। इसी तरह इमाम साहब ने फलसफे के हवाले से एक किताब लिखी तहाफ़तुत तहाफ़ा, इसमें इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह जो है उनके फलसफे के हवाले से भी कुछ इमाम साहब ने नक़द किया। उसके बाद इमाम साहब ने मिनहाजुल अदिल्ला फिल उसूल ये किताब लिखी है। फस्लुल मक़ाल फ़ीमा बैनल हिकमति व शरीअति मिनल इत्तिसाल ये किताब है। किताबुल क़ियास जो अरस्तु की है उसकी शरह की। मक़ालतुन फिल क़ियास लिखा। इसी तरह अल फ़ह्स फ़ी अम्रिल अक़्ल ये किताब मुरत्तब की। अल फ़ह्स अन मसाइल वक़अत फिल इलाहियात मिन अश्शिफ़ा इब्न सीना जो इब्न सीना रहमहुल्लाह की किताब है, उस किताब के हवाले से चंद एक जो मसाइल वाक़े हुए हैं इलाहियात के बारे में उसको खोलने की और उसकी शरह करने की इमाम साहब ने कोशिश की। ये चंद एक वो कुतुब हैं जो मशहूर है। इसके अलावा कई एक किताबें हैं जैसे किताबुल कौन है, अज़्ज़रूरी फिल मंतक है, मुक़द्दमतुल फ़लासफ़ा फ़ी इस्ना अशरा रिसाला है, शरहुल फ़राबी है। इसी तरह कई एक दीगर कुतुब हैं। जिस तरह के हमने शुरू में ये जाना कि 108 तसानीफ का जिक्र किया गया लेकिन सिर्फ 58 ही दस्तयाब हो सकी, और इसका सबब भी वही बना कि जब खलीफा वक़्त के साथ अनबन हुई उसने कुफर का फतवा लगाया तो इमाम साहब की किताबों को जलाने का हुक्म दे दिया और एक जो बेहतरीन इल्मी सरमाया था वो उम्मत मुस्लिमा के हाथ से जाता रहा। इस एतबार से ये एक नुकसानदेह पहलू भी था। बाहर कैफ आगे हम देखते हैं जी। आपने आज के सबक का खुलासा, आज के सबक में हम बिदायतुल मुज्तहिद व निहायतुल मुक़्तसिद के जो मुअल्लिफ हैं उनका तारुफ जाना, साहिब किताब का तारुफ, तरीक़े पैदाइश और वफ़ात, हालात ज़िंदगी और असातिज़ा और तलामिज़ा के मुताल्लिक़ रहनुमाई और इल्मी पस मंज़र जो है उसके मुताल्लिक़ और इमाम साहब की जो अहम कुतुब है उनके मुताल्लिक़ आगाही हासिल करने की कोशिश की। अगले सबक में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पढ़ेंगे बिदायतुल मुज्तहिद व निहायतुल मुक़्तसिद जो है, इसका जो शहादतुल आलमिया वफ़ाक़ुल मदारिस सलफ़िया है उसका साल अव्वल का निसाब जो किताबुन निकाह है हम उससे आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह अगले सबक में। अगले सबक से पहले आप ये सवाल हल करें। सवाल ये है कि आप इमाम इब्न रुश्द रहमहुल्लाह के फ़लसफ़े के मुताल्लिक़ क्या जानते हैं। इमाम साहब का जो फ़लसफ़ा है मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि यूरोप पर उस फ़लसफ़े का बड़ा अहम असर हुआ और इमाम साहब ने फ़लसफ़े के हवाले से कई एक बेहतरीन कुतुब जो हैं वो लिखी हैं, तो आप इसके मुताल्लिक़ रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।